Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete and comprehensive update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us, you can call us on 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. And of course, do prefix the code 011. Your anchors for today, Subodh Mishra and Sarabjit Kaur. धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत। President Draupadi Murmu says energy conservation is no longer an option but a necessity of the present time. Prime Minister Narendra Modi to visit Jordan tomorrow, coinciding with 75th anniversary of diplomatic relations between the two nations. And domestic markets to focus on WPI data, rupee movement and global trends for Qs next week. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि ऊर्जा संरक्षण अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि आज की जरूरत है। भारत और जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जॉर्डन जाएंगे और अगले हफ्ते देश के शेयर बाजारों का फोकस रहेगा थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़ों, रुपए की दर और वैश्विक संकेतों पर। Before we go any further in the program, may we remind our listeners once again, the views and opinions expressed by the experts in the program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. तो सरबजीत, अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा है कि ऊर्जा संरक्षण अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि वर्तमान समय की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि बचत की गई ऊर्जा की हर इकाई प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को दर्शाती है। यह भविष्य के लिए संवेदनशीलता और सरोकार का भी परिचायक है। ऊर्जा दक्षता में राष्ट्र की उपलब्धियों को दर्शाने और ऊर्जा संरक्षण के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत ने ऊर्जा संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने निर्धारित समय सीमा से पहले अपनी स्वच्छ ऊर्जा वचनबद्धताओं को पूरा कर लिया है। यह उन्नत ऊर्जा दक्षता और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है। And Subodh, I can see our listeners have already connected with us. Let's go to our first caller. हाँ, दिल्ली से आरएस दहिया हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सर नमस्कार। नमस्कार। My request is, sir, please don't disconnect my call because I want interactive talk. Last time my question was not answered. My question to the expert is that I want to invest 10 lakh rupees in equity-oriented funds. I don't want to go to hybrid or any other. I want his advice that which are the three best top-performing funds where I should invest for a period of 5 years, and I don't need this money in between.
So first of all, I would like to say that if your goal is non-negotiable and you absolutely need the money exactly after 5 years, as you mentioned, then pure equity may not be the right fit for you. You should consider hybrids. I understand, although you did mention that you do not want to go with hybrids right now, you just want to go with equities. But believe me, with a horizon of 5 years, pure equity may not be very fruitful, because in equities within a short period of time there can be many periods of ups and downs and there can be high volatility. But if still you want to go with equities, then I would say firstly, maybe you can look for a good index fund which tracks Sensex and or Nifty, because they would be comparatively low on risk. And the another fund would be something in the diversified category, a flexi cap fund. But still, go with pure equities only if you are okay with extending your horizon a bit and your goal is, slightly negotiable when it comes to the time horizon. या आप उतना रिस्क ले सकते हो. बिल्कुल. And Akar, let's go to our next caller again from Delhi. Yogesh जी, अपना सवाल पूछें. जी नमस्कार आप सभी को. मेरे सवाल ये है कि जो ELSS फंड है इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी न्यू टैक्स रिजीम बहुत कॉमन हो गया है. दूसरा एक सवाल है कि जैसे हम लोग शेयर में कभी बिकवाली होती है तो उसकी वजह से उसका भाव गिरता है, सिर्फ बिकवाली की वजह से. तो क्या म्यूचुअल फंड में भी अगर कोई ड्रॉ डाउन आता है तो क्या NAV उसकी वजह से कभी हिलती है उसकी? योगेश जी, जो आपका पहला सवाल है ELSS का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, देखिए इसके दो पहलू है. एक तो है कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट कंपैरेटिवली डेफिनेटली कम हो गया है, क्योंकि आपका जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें आपको इसका टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता. बट वहीं पे अगर मैं बात करूंगा कि इसकी अहमियत एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में क्या है, तो वो आज भी बहुत अहमियत है. उसके दो कारण है. सबसे जो पहला कारण है, एक जो ELSS फंड होता है वो एक पूरा डाइवर्सिफाइड फंड है. वो उसका एक फ्लेक्सी कैप फंड वाला नेचर होता है, जो कि एक लॉन्ग टर्म इक्विटी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड फंड के लिए एकदम कारगर साबित होता है. दूसरी जो अहमियत है वो एक बिगनर इन्वेस्टर के लिए, इक्विटी इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि भले ही आपको टैक्स में छूट ना मिले न्यू टैक्स रिजीम में, लेकिन जब आप इसमें निवेश करते हैं तो आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है. और वहां पे होता क्या है कि जब जो छोटे मोटे पड़ाव आते हैं, जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि जो निवेशक है वो घबरा के पैसा वहां पे निकाल लेते हैं. लेकिन यहाँ पे वो ऐसा नहीं कर पाते, उनको 3 साल के लिए रुके रहना पड़ता है. और वहीं पे 3 साल के बाद जाके उनको कुछ एक वो लॉन्ग टर्म थोड़ा सा बेनिफिट दिखना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से वो इसमें अपना निवेश जारी रखते हैं. तो ELSS उस समझ से अभी भी काफ़ी अहमियत रखता है एक रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में, अगर आप चाहे तो. और अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर है तो, और आपको टैक्स में बचत नहीं चाहिए है, मतलब इसमें आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ही मिलेगी, न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगी, तो आप एक डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ भी जा सकते हैं. अगले कॉलर हैं फरीदाबाद से सुभाष. स्वागत है आपका, सवाल पूछें. लगता है सुभाष के साथ हमारा संपर्क टूट गया है. सतीश हैं दिल्ली से हमारे साथ. सतीश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें. हाँ नमस्कार सर. नमस्कार. मैं सतीश कुमार बोल रहा हूँ सर. ये म्यूचुअल फंड ये एक साथ लेने चाहिए या मंथली भी ले सकते हैं? और दूसरा मेरा ये था कि मान लो 1 लाख या 2 लाख के हम लेते हैं तो कितने ज्यादा टाइम के लिए लेने चाहिए कि हमें कुछ ज्यादा फायदा हो सके? बस ये बहुत बुनियादी सवाल है आकार, और ये शायद हमारे अधिकांश श्रोताओं को इस सवाल के जवाब की जरूरत है. जी बिल्कुल. सतीश जी, देखिए सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो कई प्रकार के हैं. उसमें कई तरह तरह के म्यूचुअल फंड्स है. कुछ इक्विटी स्कीम्स है, कुछ डेट स्कीम्स है, और कुछ हाइब्रिड स्कीम्स है. उनमें से सही म्यूचुअल फंड चुनना ज़रूरी है, और वो चुनना निर्भर करेगा कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कितने समय के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं. तो अगर आप पैसा 5 साल से ज़्यादा अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ही केवल एक इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है. और जब भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो एक साथ पैसा अपना ना लगाए. जैसे कि आपने कहा कि एक साथ लगाना चाहिए या उसको बांट के लगाना चाहिए. इक्विटी में हमेशा पैसा तोड़ तोड़ करके एक टाइम होराइजन में थोड़ा सा स्प्रेड करके लगाइए. कम से कम 6 महीने का समय रखिए. 6 महीने से, और अगर बहुत ही बड़ी रकम है, बहुत ही एक ऐसी रकम है जो कि आमतौर पे आपके लिए नहीं होती है, तो आप उसको 3 साल तक कर सकते हैं. उसको अपना तोड़ तोड़ के लगाइए.
दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका जो समय है, जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वो बहुत ही थोड़ा है, कुछ 2-3 साल का है, तो उसके लिए आप एक डेट फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड का चुनाव कर सकते हैं। और वहीं अगर एक मीडियम होराइजन है कि जैसे मान लीजिए 4-5 साल का है या फिर कुछ ऐसा है, तो आप एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की तरफ भी चुनाव कर सकते हैं। Alright, our next caller is again from Delhi. विनोद जी अपना सवाल पूछें। पूरी मार्केट में टीम को मेरी तरफ से नमस्कार जी सर। नमस्कार। मेरा एक्सपर्ट से सवाल ये है कि मैं 2017 से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ और किसी वजह से मैंने पिछले कुछ दिनों में ना कुछ फंड मैंने रिडीम कर लिए और वो पैसा मेरा वापस आ गया है जो मैंने रिडीम किया था। मतलब वो काम था वो हो चुका है, वो फंड मुझे वापस मेरे पास हो गया है, तो उसको कैसे इन्वेस्ट करूँ। नंबर 2 सवाल, 2017 से ही मैं SBI का स्मॉल फंड में इन्वेस्टेड हूँ, स्ट्रगल कर रहा है अभी, तो अगर उसको स्विच करना है तो किस फंड में करूं, क्या जरूरत है उसको स्विच करने की। थैंक यू। विनोद जी, जो आपका पहला सवाल था कि मैं जान पा रहा हूँ कि पहले आपका वो पैसा इक्विटी में ही लगा हुआ था और अभी वो वापस आपके लिए अवेलेबल हो गया और आप उसको दोबारा इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आपको रिडीम करे हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है जैसे कि आपने कहा, तो एक तरीके से वो एवरेजिंग का बेनिफिट आपको मिल चुका है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप उसको तोड़ तोड़ के सिस्टमैटिकली निवेश करें, लेकिन फिर भी अगर आप एक कंजर्वेटिव बेट लेना चाहेंगे तो फिर मैं कहूँगा कि आप उसको 3 से 4 महीने में आप उसको निवेश कर सकते हैं, तोड़ तोड़ के लगा सकते हैं। दूसरा सवाल, SBI स्मॉल कैप, जी आप ठीक कह रहे हैं कि SBI स्मॉल कैप फंड बहुत समय से थोड़ा मतलब उसका जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप उसमें आपका SIP चालू है तो आप SIP उसमें अभी अपना रोक दीजिए, कुछ इंक्रीमेंटल मनी ना लगाए अगर एग्जिस्टिंग SIPs आपके उसमें कुछ जा रहे थे, और थोड़ा सा उसको कुछ समय दीजिए क्योंकि उनके जो फंड मैनेजर है काफ़ी अच्छे हैं, कुछ समय तक आप उसको और कुछ दे सकते हैं, समय दे सकते हैं। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो आप उसमें से एग्जिट भी ले सकते हैं। जी, दिल्ली से केशव हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ एक्सपर्ट को कि शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में जो है आपका, इसमें फ्रॉड होने के कितने चांसेस हैं। जैसे कि 91 के आसपास एक बहुत बड़ा शेयर घोटाला हुआ था, अब हम कितने सेफ हैं। और मेरा ये सवाल है, मेरे बेटे को 3 लाख रुपए लमसम शेयर फंड में लगाना है क्योंकि उसने अपनी FD में इसमें लगा रखा है। FD में बेनिफिट है कि म्यूचुअल फंड में बेनिफिट है, ये इसको लगभग 4-5 साल के लिए वो रख सकता है। बीच में अगर ब्रेक करना चाहे तो उसमें हो सकता है, इसके बारे में बताया जैसे FD में होता है। थैंक यू। केशव जी, जो आपका पहला सवाल है, जी बिल्कुल 91 में एक काफ़ी बड़ा घोटाला हुआ था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 91 और ये 2025 इसमें कई दशक निकल चुके हैं और आज के कंपैरिजन में जो हमारा जो एक स्टॉक मार्केट है, जो हमारा रेगुलेटर है, जो भारत सरकार है, वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आ चुके हैं एंड वहाँ पे अब जो है रेगुलेटर बहुत ही एकदम फोरफ्रंट पे है और बहुत ही प्रोएक्टिवली काम करता है। पहले होता था कि अगर कुछ हो रहा है तो उसके बाद नियम आते थे, लेकिन अब जो हमारा रेगुलेटर है वो प्रोएक्टिवली चीज़ें सेंस करके और पहले ही रूल्स निकाल देता है, बहुत ही स्ट्रिंजेंट कर देता है। तो थैंकफुली जो हमारे रेगुलेटर है बहुत अच्छे हैं। तो एज सच इसमें देखिए कोई मेरे को अब नहीं लगता है कि हमारे को उस चीज़ से डरना चाहिए। और दूसरा जो आपने कहा कि 4-5 साल के लिए आपके बेटे के लिए पैसे लगाने हैं, तो आप अगर एकदम है ये कि 4-5 साल में ही पैसे चाहिए तो आप इक्विटी सेविंग्स फंड का चुनाव कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा आप होराइजन बढ़ाने का एकदम ही बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा नहीं है कि नॉन नेगोशिएबल है, तो आप एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड का भी चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम फरीदाबाद। सुभाष जी अपना सवाल पूछें। सुभाष जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। जी, अगली खबर पे चलते हैं। Yes, let's see what's the next big story of the day. Prime Minister Narendra Modi will undertake a bilateral visit to Jordan from December 15 to 16. This will be PM Modi's first full-fledged bilateral engagement with Jordan, coinciding with the 75th anniversary of the establishment of
diplomatic relations between the two countries. India and Jordan share strong and steadily expanding economic ties, with India emerging as Jordan's third largest trading partner. Bilateral trade between the two countries is valued at approximately $2.8 billion. Jordan is a key supplier of fertilizers to India, particularly phosphates and potash, which are critical for India's agriculture sector. A flagship example of this cooperation is the Jordan India Fertilizer Company, a joint venture worth $860 million between India's IFFCO and the Jordan Phosphates Mines Company, which was established to produce and export phosphoric acid to India. Meanwhile, I can see our next caller connecting with us from Haryana. मनोज जी, अपना सवाल पूछें. नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है कि जी लिक्विड फंड से जब हम पैसा निकालते हैं तो उस पर कोई एसटीसीजी या एलटीसीजी भी लगता है क्या? जी मनोज जी, बिल्कुल. जब जो लिक्विड फंड है वहाँ से जब भी आप पैसे निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ समय पहले तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एग्जिस्ट करता था डेट फंड्स के लिए, लेकिन अभी कुछ नियमों में चेंज हुआ है और उसके बाद से इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम होराइजन कि आपने कितने समय के लिए आप उसमें इन्वेस्टेड रहे हैं, जो आपके कैपिटल गेन्स है डेट फंड से जो कि लिक्विड फंड कैटेगरी में आते हैं, वो आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाते हैं और जो भी आपका स्लैब रेट है उस पे टैक्सेबल होंगे. सो मान लीजिए अगर आप 20% के टैक्स स्लैब में फॉल करते तो जो भी कैपिटल गेन्स उस पे होएगा आपको, वो आपको 20% का उस पे टैक्स आपके लिए एप्लीकेबल होगा. जी, जयपुर से जितेंद्र हमारे साथ हैं. जितेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें. हाँ सर, एक छोटी सी मतलब ये है कि पिछले बार संडे का रिकॉर्डिंग नहीं आया था. रिकॉर्डिंग आ जाता ना कुछ घंटे के बाद जी. तो ऐसा साल में 2-3 बार हो जाता है सिर्फ म्यूचुअल फंड के साथ, बाकी शनिवार सोमवार को नहीं होता है. तो ये एक चीज मुझे बताना था, हो सकता टेक्निकल रीजन से नहीं आया हो. जी. हेलो जी. जी, धन्यवाद. चले अगले कॉलर के पास हम. सुभाष दिल्ली से हमारे साथ हैं. स्वागत है आपका, सवाल पूछें. सुभाष, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हाँ जी, हाँ जी. जी, सवाल पूछें. सुभाष चंद्र सचदेवा, फरीदाबाद से. जी, फरीदाबाद से. जी. हेलो जी, सवाल पूछें. सर, ये मैं पूछ रहा था कि इसमें एक ये इनकम टैक्स रिटर्न भरा था मैंने 2025-26 का भी किया था और उसके बाद मेरा रिफंड भी आ गया सर अक्टूबर में. अब मेरे पास सर 12 दिसंबर को एक नोटिस आया वहां से है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न दोबारा से भरना है. तो ये मुझे समझ नहीं आया सर. मेरे पास रिफंड भी आ गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद ये नोटिस किस लिए भेजा गया? I'm afraid, Subhashi, today is a day dedicated to mutual funds. आज हम सिर्फ म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए जवाब ही दे पाएंगे. इसके लिए आप शनिवार को या सोमवार को जब हम बाकी सारे मुद्दों पर बात करते हैं उन दिनों पर आप फोन करें तो हमारे एक्सपर्ट आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे. और अगले कॉलर हैं हरियाणा से जितेंद्र. स्वागत है आपका, सवाल पूछें. सर जी नमस्कार. नमस्कार सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो म्यूचुअल फंड एक स्कीम से दूसरी स्कीम में शिफ्ट करते हैं तो क्या उसकी स्कीम बिक जाती है? मतलब जैसे स्मॉल कैप से दूसरे स्मॉल कैप में या मीडियम कैप में कोई भी आईसीआईसीआई प्रेसिडेंशियल का किसी का मतलब शिफ्ट करेंगे तो क्या वो बिक जाते हैं या? हाँ जी. तो वो उसे रिडीम हुआ ही माना जाएगा हमेशा. जब भी आप चेंज कर दे, इवन एक ही कंपनी के 2 फंड्स में भी करते हैं आप, तो वो एक हर बार रिडीम माना जाएगा वो. जी और बिल्कुल. टैक्स भी होगा. हाँ जी, बिल्कुल. सो आप कोई सी भी अगर एक स्कीम से भले ही अगर आप सेम फंड हाउस की या उसी स्कीम के रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में भी आप शिफ्ट करेंगे तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो एक तरीके से माना जाएगा कि आपने अपनी पुरानी स्कीम में जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो आपने बेच दी है और उसके बाद उस पैसे को आपने उस नई स्कीम में दोबारा इन्वेस्ट करा है. तो इसमें आपका जो टैक्सेस एप्लीकेबल है वो भी होंगे. और अगर कोई सा फंड एग्जिट लोड पीरियड के अंदर है, जो कि जैसे कि इक्विटी फंड्स में नॉर्मली 1 साल का होता है किसी फंड में, तो फिर वो एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल होएगा. Our next caller is from Mumbai. Mr. Gopal, please ask your question. जी नमस्कार, मार्केट टीम.
सर ये जो एक्चुअली देखा जाए तो इंडेक्स सारी लास्ट लाइफ टाइम हाई पे है, लेकिन इक्विटीज जो है 90% इक्विटीज की हालत बहुत खराब है, जैसे कि कोई कोविड और 2008 की तरफ पहुंच गए हैं। मेरा कहने का मेरा तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा कोई म्यूचुअल फंड है इक्विटी का जो आज लिया जा सके? जी बिल्कुल, आप अपने गोल के हिसाब से देख सकते हैं। सो देखिए, जो इक्विटी फंड्स के अंदर है उनमें एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच होती है। तो आप किसी इंडेक्स फंड का चुनाव भी कर सकते हैं जो सेंसेक्स या निफ्टी को ट्रैक कर रहे हैं, या फिर आप एक डाइवर्सिफाइड फंड, कोई फ्लेक्सी कैप फंड या फिर एक मल्टी कैप फंड का भी चुनाव कर सकते हैं। जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो आपका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में पैसा लगाते हैं। उसमें फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पूरी छूट होती है कि कितना प्रतिशत वो लार्ज कैप कंपनीज में लगाए, कितना मिड कैप कंपनीज में और कितना स्मॉल कैप कंपनीज में। वहीं एक जो मल्टी कैप फंड है वहाँ पे एक मैंडेट होता है कि उनको मिनिमम 25% लार्ज, मिड और स्मॉल में लगाना है। जो बचा हुआ 25% होता है उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है एक फंड मैनेजर के पास। तो आप बिल्कुल निवेश कीजिए, लेकिन एक लॉन्ग टर्म होराइजन रखिए, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करिए और एक डाइवर्सिफाइड फंड का ही चुनाव कीजिए, सेक्टोरल फंड ना ले। जी, अगले कॉलर हैं बिहार से रिंकू। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा 41 एज है, ठीक है जी। और मेरा एक 10 साल का लड़का है और एक 4 साल की लड़की है। उसके लिए मैं 4-5 साल के लिए म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं मंथली में। तो कोई ऐसा स्कीम सर बताइए जो बैंक द्वारा लगे, उसमें कुछ 5 साल तक में कुछ उसके एजुकेशन में पढ़ाने में अच्छा रहे। रिंकू जी, आप किसी भी एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड का चुनाव कर सकते हैं। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में होता यह है कि जो आपका पैसा है वो लगभग अंदाजन 70% डेट में लगता है और 70% आपका इक्विटी में लगता है, और जो बचा हुआ पैसा है लगभग 30% वो आपका डेट में लगता है। उससे होता यह है कि जैसे अगर मार्केट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है, कभी जब मार्केट वोलेटाइल होती है तो ये फंड्स भी मार्केट के साथ गिरेंगे, लेकिन ये एक प्योर इक्विटी फंड से कम गिरेंगे। तो आप किसी भी एक अच्छे अग्रेसिव हाइब्रिड फंड का चुनाव कर सकते हैं। जी, आपने जैसे अभी कहा, बहुत सारे हमारे श्रोता ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं जो शायद इंटरनेट का उतना इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, खासकर बैंकिंग के लिए या फिनटेक ऐप के लिए। वो बैंक के थ्रू करना चाहते हैं, उनका नज़दीकी जहाँ पर भी जो भी बैंक की शाखा हो। तो क्या पास के बैंकों में जो छोटी शाखाएं हैं उनमें इस तरह की सुविधा मिल सकती है कि वो म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए वहां पर जाकर संपर्क कर सकें? जी, आजकल आमतौर पे काफ़ी बैंक्स में ये सेवा उपलब्ध होती है। एंड नॉर्मली जो सारे बैंक्स है वो एक म्यूचुअल फंड एजेंट के तरह भी उनके पास होता है और वो लोग सहायता कराते हैं। बस वहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अक्सर ये होता है कि जब बैंक में जाया जाता है तो वो हमारे को एक प्रोडक्ट देते हैं जिसमें कि कहते हैं कि इसमें आपका पैसा मार्केट में भी लगेगा और साथ में एक आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, लाइफ कवर भी होगा, जो कि एक तरीके से यूलिप होता है। तो बस ध्यान ये देना है कि वो यूलिप आपको म्यूचुअल फंड कहकर ना बेचा जाए। वो एक हाइब्रिड प्रोडक्ट होता है और वो दिखता तो बहुत अच्छा है, 3-in-1 दिखता है, लेकिन देखा यह गया है कि लंबे समय में वो बहुत अच्छा कारगर साबित नहीं होता है। वो एक ना प्रॉपर लाइफ कवर दे पाता है और इन्वेस्टमेंट के लिए वो बहुत ही कॉस्टली रहता है। तो उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पलट के पूछ लीजिए कि क्या इसमें मेरे को कुछ एक इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है। अगर आपको एक इंश्योरेंस कवर उसके साथ में उसके अंदर मिल रहा है तो फिर वो एक म्यूचुअल फंड नहीं है, वो एक यूलिप है, वो मत लीजिए। हाँ जी, इंश्योरेंस कवर आप अलग से लीजिए, एक प्रॉपर प्योर टर्म प्लान लेकर के, वो बहुत जरूरी है, बट उसको म्यूचुअल फंड से जोड़े ना अलग जी। और बिल्कुल साफ साफ पूछे कि ये म्यूचुअल फंड है या नहीं, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि कई और स्कीम से जिनके पीछे फंड लगा होता है, हाँ लोग उससे भी धोखा खा जाते हैं जी। तो आप साफ साफ पूछे बैंक में कि ये म्यूचुअल फंड है या नहीं है, और अगर वो कुछ और फंड बताता है तो उससे बचें। जी बिल्कुल। And Akar, very briefly, we'd like to know from you, what are the parameters of investing in a mutual fund? Is it the time frame, your appetite to handle risks, or is it the goals? What do you have to say about this? So I would say everything comes together. So firstly, you need to decide on your goal, the purpose for which you are planning to invest that money, and that would help you decide on the time horizon.
which in turn would help you to choose the right asset class. So if it's more than 5 years equity, less than 5 years debt, or maybe a mixture hybrid. Once you get onto this asset class, that will help you choose the right fund category. All right, I can see another caller from Delhi. Vijender ji, अपना सवाल पूछें. ये मैडम मैं नमस्कार मैडम, मैं ये पूछ रहा था कि आजकल मैंने सुना है कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर जी, तो एजेंट से संपर्क करना पड़ेगा या किससे? जी, आप जाके पोस्ट ऑफिस में भी एक दफ़ा पूछ सकते हैं, अगर वो वहाँ पे जो आपके आसपास की शाखा है वो अगर सहायता कर रही है म्यूचुअल फंड्स में निवेश कराने के लिए, तो आप बिल्कुल उनके साथ भी निवेश कर सकते हैं. All right, let's see how the markets are expected to show up in the week beginning tomorrow. After declining last week, domestic markets are expected to take cues next week from a mix of key domestic and global factors, including wholesale price inflation data, developments in India-US trade talks, movements in the rupee, and foreign investor activity. Last week, both Sensex and Nifty fell over 0.5%. Looking ahead, inflation data is expected to be one of the key triggers for the market next week. The Ministry of Commerce and Industry will release wholesale price inflation data for November on December 15th. WPI eased to minus 1.21% in October. Apart from that, investors will also keep a close eye on the movement of the rupee against the dollar. और देखते हैं कि एफपीआई ने क्या किया है इस महीने. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने के 2 शुरुआती हफ्तों में भारत के शेयर बाजार से 17,955 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं. इस भारी निकासी से पहले नवंबर में उन्होंने 3,765 करोड़ रुपए निकाले थे. इससे पहले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारत के शेयर बाजार में अक्टूबर में 14,610 करोड़ रुपए का निवेश किया था. सितंबर में उन्होंने भारतीय शेयर बाजार से 23,885 करोड़ रुपए, अगस्त में 34,990 करोड़ रुपए और जुलाई में 17,700 करोड़ रुपए की निकासी की थी. And Akar, in the backdrop of volatility in the market, investments in mutual funds have always been advocated as a safer bet. What's your expert comment on this, very briefly? Yeah, definitely. And I would say the major reason behind it is the diversification, because when you invest in a mutual fund scheme, you automatically get exposure to a basket of stocks, say at least 40-50 stocks if it's a well-diversified fund. And, that diversification definitely minimizes the risk and reduces the impact of volatility, because if something is not performing well, probably other stocks in that basket are performing well, which will help you reduce the impact. And if I were to ask you, what should be the ratio between investment in mutual fund, in public provident funds, in gold, what was the ratio that you would advocate for a layperson? So I would say that again depends on your goal. Because see, mutual funds, I believe we are talking about equity mutual funds, and when we talk about PPF, that is a very good product, but for your fixed income needs, you must have that, but limited to your fixed income portfolio. I mean that percentage. So generally for a long-term portfolio, maybe something like 70-30 portfolio works well, wherein around 70% is equity and 30% is fixed income. When it comes to gold is definitely proving out to be a very good hedge, because but still over the long term probably it cannot beat equity, because it's not a productive asset like equities and fixed income are. Gold can form a small percentage, say around 5 or at max 10% of your portfolio for hedging purposes. ठीक है, मतलब सोना आप अपने जितनी बचत है जो आप निवेश करना चाहते हैं उसके 10% से ज्यादा आप सोने में ना लगाएं. आकार कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जी धन्यवाद. Listeners, before we wrap up today's edition of Market Mantra, a reminder of the headlines. President Draupadi Murmu says energy conservation is no longer an option but a necessity of the present time. Prime Minister Narendra Modi to visit Jordan tomorrow, coinciding with 75th anniversary of diplomatic relations between the two nations. And domestic markets to focus on WPI data, rupee movement and global trends for cues next week. And that's it in today's edition of Market Mantra. Until tomorrow, goodbye.
कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। मार्केट मंत्रा